structures. Okay, so this is the structure of the essay. Is structure of an essay, and here essay means a composition with 2 4 pages with the 500 or 1,000 words. So that is known as essay. And also this structure you can use in any piece of writing. So I say it as a universal structure. So let us start. So first of all, we need to understand what are these things. First is title. So in title, we define what our title is. It can be anything, like it can be the pollution, it can be the traffic in India, it can be the politics in India, it can be the international relation. So there has to be title, and that is number one. While going forward, I will tell you that why title is important. Second is introduction. Okay, so introduction, we know introduction introduces the title in a broader way to the examiner. Next comes the body. So this is the body part. अब यहाँ तक तो you know it very well. Now these are the new learnings. Up now, what is a paragraph? When I talk about paragraph, this is the complete structure. Okay, so this way I'll tell you. After then, we will move the transition. Transitions are the part of the paragraph. Transition we use when we move from one paragraph to the another paragraph. I'll give you the example what are transitions. And then we will use the paragraph B. Again, in paragraph, second paragraph, the structure would be the same. After then, we will use the another paragraph, another more paragraphs, and then we write a conclusion. Now, read it more elaborately. First of all, let's look at what the title is and why it is important. Now, title basically indicates what the essay is all about. But when it is being asked to you, when it has come as a question to you, for example, write an essay on why the pollution is on alarming rate in India. So it also indicates that what you will have to write in an essay. So title has extreme importance because it tells you the context and the length and breadth your essay must cover, and also the scope that you should include in your essay. That's why the title I tell is the uh, most important point in an essay. That I will also give all the examples. I will explain all the things with examples. After that, let's come to the introduction. Now, okay, first I'll elaborate title. Now, titles. Titles of an essay should reveal its topic. Okay. Since a title should be short, it usually should not reveal in detail what the writer plans to do with the topic. The titles of the student's essay often reveal the presence or the lack of focus. Okay. So in many cases, you are asked to write the title of any essay. So it tells that how much understanding do you have for the passage. So I tell you where it helps you. It helps you in reading comprehension. So if you do this title practice, recognizing or identifying the title practices, it will help you in reading comprehension, whereby reading the comprehension, you will tell that what is the main theme, what is the main idea of a particular passage. आई होप यू अंडरस्टैंड इंग्लिश. मैं इंग्लिश में डायरेक्टली बात कर रही हूँ. अगर आपको नहीं कंफर्टेबल है, यू कैन टेल मी कि मैम आप हिंदी में बोलो. ओके. नहीं मैम, नहीं मैम, इट्स ओके। Okay. Next, reveal in detail what the writer plans to do with that topic. Titles of a student reveal the presence or lack of focus. Generally speaking, जितना ज़्यादा आपका specific, the more specific the title is, the more focus the writing tends to be. Okay, this is a general rule. That's why people are encouraged to write the specific titles. For example, if you are mentioning pollution in India, okay, so this is specific. Instead of you are giving the title pollution. So pollution is very broad. Like it can be in India, it can be other countries, it can be in the industries, it can be the soil, noise, water. It can be in America. But when you have written pollution in India, so with in India words, you have limited the scope of that particular topic. Now moving forward, pollution in India in industries.
So I have further limited the scope of my article. So that these are the that's the importance of the article. You have to be as specific as possible. So next, example of essay titles. So this would be a paragraph. Okay, I'll show you the paragraph now. So it is clear that in that paragraph something would be written related to Greece, something related to a Greece strategy, Sophocles and strategy, something like that. Okay. So look here how they have given the titles. You can write the title as Greece. Okay. But what would be the more specific? Greece strategy, tragedy. Now it tells me that the paragraph or the essay will talk about some tragedy in the Greece. Now I'll go towards more specific things like Sophocles and tragedy. Now I will go more specific, Antigone. I will go more specific, concept of duty in Antigone, and then again I will answer exactly what is in the paragraph. In paragraph, there is a debate which says that would Antigone have been a draft version. Okay. Now, since you haven't seen the paragraph, you might feel perplexed in this. Now, let me move to the next thing. So I tell you that there is a paragraph. There are just five, 6 lines in which there the writer talks about the God and its existence. And do you think that God exists or does not exist? Okay, this is the context that is written in the article. Now, how can I give a title to it? Should I only write God? Then it is a very broad title. The existence of God, particularly specific. Now let's dive more deep into it. Proofs for the existence of God, more specific. Okay, so compare this existence of the God and proof for the existence of God. Now the context has changed. It is providing more specific details. One more thing, the impossibility of proving the God exists. Now this is more specific. So you understand. So there are so this is you need to identify. You should read a paragraph and then you should know the theme, and not only the theme but the specific theme. Is it talking about God? No, it is talking exactly about the impossibility of the proving God exists. You will see all the paragraphs, don't worry, and then I will again come to this and ask you next. Okay. So there is one more paragraph on abortion. Okay, so they have written a paragraph in which they have given some facts about abortion. So what could be the title? The title could be abortion, but no, arguments for and against abortion. Now I understand. Okay, in this paragraph there will be the arguments against the for and against abortion. Now let's go more specific. Reasons and emotion in abortion argument. So basically, even in the arguments, they are just going to talk about the two things. What are the two things? The one is reason and one is emotion. Okay, this is more specific that they are not going to discuss all the reasons, but what they have written here is reasons and emotional appeal of the emotion. Don't worry, I will show you the paragraph. Reasonable arguments in abortion controversy. Now when they have used the word abortion controversy, it has given me the more context. Okay, it was actually a controversy, it was a debate, that's why we are talking about it. So this is how the titles work. That's why I always tell my students to identify the titles well. Okay, so these are the titles. Now let's move forward. Second is introduction to the essay. Now, what do we do in the introduction? And please, I want to tell you, please maintain a notebook for the writing part. Okay, so you have to maintain the two notebook. One is for the grammar and the rules about the tenses, active, passive, and anything that I do in grammar. The second notebook you have to maintain for the writing purposes only. Every answer, everything that you write, you will write in that notebook only. Okay, so और उसमें ये आपको लिखना है ये सब चीज़ें, टाइटल है ना, जैसे आज की डेट डाल के प्रॉपर यू हैव टू राइट टाइटल, इंट्रोडक्शन. Now let us discuss about what is the introduction of an essay. I have asked this question to you before, so I know what you know about introduction. So let me elaborate. Introduction, first of all, introduces the title to the wide audience. So it is a function of title.
and that's why the introduction and title must match. So you can say that introduction gives a little more information about the title. Yes. Does it mean that introduction will give the more specific information about the title? Yes. Does it mean that it will give more facts, details, and context about the title? Correct. Does it give all the details? No. It will give only the overview, that what my essay is all about. That's why it is a technique, or it is a tip that I give to the students, that always write introduction in the last. You know why? Because when you write the introduction in the last, uh, then you will know what you have written in the essay, and then you will be able to give a complete overview. Okay. So now let's see what the introduction is. Now there are some parts as well of the introduction. uh, I tell, first is fact. First is, you have to have some catching lines, some catchy lines, some hook for the introduction. Your first or second line must be something that if I am an examiner, I should develop an interest over what you have written, because then only I would be interested to read. So you have to develop a hook or a catchy line. How can I do that? There are lots of ways. You can start with a story, you can start with a very striking fact, you can start with the analogy means comparison of the two things. Okay, all the things I will show you in the paragraph later, don't worry. Okay, I will show you each tool separately with the examples. So you can use the facts, you can use the statistics, you can use a very good example, you can also use the context. Okay, so we can also use the context in the introduction that I'm telling about the starting of the two lines. Okay, now what should I do in the third line? I will write the definition if I have any. Okay, I will write a definition. Or what will I write? I will also write the, elaborating. If I think that there are some examples that elaborated completely, I will write that. After that, I will write some more details if I want. So we know that in the introduction, in a general essay, like in a 500 to 1000 words essay, it is not more. It is not a more than one paragraph or two paragraphs. So we have to be very broad in the introduction. Why? Because we are giving an overview. So this is an introduction. Now I will show you some details, some introduction example, so that you will understand it well. All the things I will make you notes about it. ठीक है, तो मैं सारे आपको notes बनवा दूंगी इस पे. तो don't worry, you just look at the example now. Okay. So listen, what are the introductory paragraphs? And I will also send you this book, so you will have to go through this. So what are introductions? How we pursue it? Titles and introductory paragraphs should be closely related. This is I have told you. The introductory paragraph must contain an opening statement. यही तो मैंने आपको बताया. It has to have some opening statement. After that, thesis statement. Okay, thesis statement. The opening paragraph should establish a context. ठीक है, you will have to take care of each word. It should let the reader know what the topic is in more detail than the title. It should inform the reader of the writer's intention. What are you going to try to do in the paper? Okay. Good writer use the introduction to stimulate the interest to the essay by indicating some interesting fact about the topic's history or by noting its significance or value. यही मैंने आपको बताया इतनी देर से. Below you will find examples of the introductory paragraphs for each of the most specific titles from the list of the examples titles given above. तो अभी जो हमने ऊपर टाइटल पढ़े हैं ना, अब हम उनके इंट्रोडक्शन देखेंगे. तो यहाँ आपने समझा इसने क्या क्या बोला. इसने बोला एक तो ओपनिंग स्टेटमेंट देना चाहिए. थीसिस स्टेटमेंट, थीसिस मतलब व्हाट आर यू ट्राइंग टू एस्टैब्लिश इन योर एसे. Essays are written as the answer of something. So whatever you are trying to establish, whatever your stand is, you are for something, you are against something, okay, you are neutral, you have to clearly indicate in the thesis statement. After that, you have to write the context. Is it about India? Is it about Delhi? Okay, is it about a context? The context is international, the context is environmental, in which dimension you are going to write.
एंड यू विल हैव टू इट शुड इन्फॉर्म द रीडर द राइटर। इंटेंशन का मतलब वही है कि आपका स्टैंड क्या है। ओके, एंड आफ्टर दैट स्टिमुलेट इंटरेस्ट। ये मैंने आपको बताया कि हुक होना चाहिए आपके में, कि मैं अगर आपका कोई पीस ऑफ राइटिंग पढ़ रही हूँ, इट शुड बी इट शुड इंटरेस्ट। सो यस, या वन मोर थिंग, यू कैन ऑल्सो राइट द टॉपिक हिस्ट्री। हिस्ट्री से बहुत अच्छे से हम जो शुरुआत करते हैं बाय नोटिंग इट्स सिग्निफिकेंस और वैल्यू। बिलो यू विल फाइंड एग्जांपल ऑफ द इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ। ओके, तो ये थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल पड़ेगा, मैं आपको थोड़ा इजी वाला दिखाऊंगा। ओके, सो द इम्पॉसिबिलिटी ऑफ प्रूविंग गॉड एग्जिस्ट। ठीक है, तो ये हमारा पैराग्राफ है, दिस इज आवर टाइटल, एंड नाउ लेट अस इलैबोरेट। Whether or not the existence of God can be proven by rational argument has been debated for centuries. Despite the many arguments for God's existence, such as Anson's famous ontological argument or St. Thomas' five proofs, I will show that it is impossible to prove the existence of God. So you understand what have we done here? मैंने टॉपिक उठाया इम्पॉसिबिलिटी ऑफ द प्रूविंग गॉड एग्जिस्ट। अब मैंने सबसे पहली लाइन में देखो क्या लिखा, आपने लिखा कि वेदर और नॉट कि गॉड एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं, ये प्रूव किया जा सकता है रैशनल आर्गुमेंट से। ठीक है, जो कि डिबेट किया। तो ये मैंने यहाँ क्या एक्सप्लेन किया, मैंने इस टॉपिक को जब समझा तो मुझे समझ में आया कि जो इम्पॉसिबिलिटी और पॉसिबिलिटी है ये एक डिबेट है। क्या ये एक डिबेट है? ओके, तो क्योंकि मुझे जो पहली चीज समझ में आई मैंने उसको अपनी लाइन में लिख दिया। यही तरीका होता है करने का। ओके, नाउ आई कैन से इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द टाइटल। आफ्टर दैट तो आगे बताया कि अब बहुत, वैसे तो बहुत सारी आर्ग्यूमेंट है गॉड के एग्जिस्टेंस की, किसी ने किसी बहुत फेमस राइटर ने कुछ लिखा है, ठीक है, और जिसने किसी ने 5 प्रूफ्स दिए हैं। लेकिन यहाँ मैं आपको क्या बताऊंगा, मैं आपको बताऊंगा it is impossible to prove the existence of God. I have made my stand extremely clear in this. So this is what? This is my thesis statement. Thesis means what? My essay will revolve around this. So it can be said a good introduction. However, I want to say that I would have provided more details, है ना? या फिर मुझे लगता है कि मैं ना कभी भी ऐसे नहीं लिखूंगी, आई विल शो दैट इट। हम कभी ना कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे हाँ फर्स्ट। मैम। हाँ, हाँ, मतलब ये लास्ट लाइन जो है इतना सॉलिड स्टेटमेंट या फिर इतना मतलब आई विल शो दैट इट इज इम्पॉसिबल टू प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ये लिखना सही होगा कि नहीं ये नहीं नहीं, जरा ये मैं आपको बता रही मतलब। हूँ ना, ये जो है ना ये डायरेक्टली कभी भी ना ऐसे फर्स्ट पर्सन में नहीं लिखते हैं। ठीक है, ये क्योंकि एग्जाम्पल्स हैं, ये पता है, इसको इवेल्युएट करके भी आगे बताएंगे आपको। तो ऑलवेज ट्राई, जैसे अगर मैं आइल्स की बात करूँ, आइल्स में वो डायरेक्टली लिखते हैं। ओके, वहाँ पर वो उसको डायरेक्टेड होता है कि आप लिखो। लेकिन जो नॉर्मल ऐसे लिखते हैं उनका एक क्या रूल होता है कि नेवर राइट व्हाट यू आर गोइंग टू डू, ऑलवेज शो, है ना, हमेशा शो करना है आपको आप क्या करने वाले हो। आपकी बातों से नहीं मुझे होना चाहिए कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, आपके पैराग्राफ से मुझे वो चीज शो होनी चाहिए, मैं कन्विंस होना चाहिए, है ना। तो ऐसी चीजें जो है आप जनरली नहीं लिखते हो। प्लस इसके अलावा थोड़ी सी आपको और डिटेल्स लिखनी चाहिए थी। ठीक है, आपको कुछ रीजन बताने चाहिए थे कि आखिर जो है इम्पॉसिबिलिटी क्यों, मतलब कुछ तो रीजन होगा ना कि लोग कहते हैं कि इम्पॉसिबिलिटी ही है। तो आप यहाँ पर एक दो थीम्स वगैरह यहाँ पर लिख सकते थे, राइट। तो आई वुड से दिस इज नॉट कंप्लीट इंट्रोडक्शन, दिस इज एन इनकम्प्लीट इंट्रोडक्शन, बट ये स्टार्टिंग की लाइंस आर गुड। ओके, वी कैन स्टार्ट बाय दिस। सो आपको एक मिला, आगे चलते हैं। सो और हाँ, ये अबॉर्शन कंट्रोवर्सी। तो मैं आपको ये टॉपिक इसलिए ले रही हूँ क्योंकि ये जनरली आपको समझ आएंगे, है ना, बिकॉज ये आसपास आपके होता है। तो रीजनेबल आर्ग्यूमेंट्स इन द अबॉर्शन कंट्रोवर्सी, तो हमने ऊपर देख लिया कि हमने टाइटल कितने अच्छे से सिलेक्ट किए। हम अबॉर्शन भी लिख सकते थे, हम उसके नीचे और रीजंस भी लिख सकते थे, केवल आर्ग्यूमेंट्स लिख सकते थे, हम रीजंस एंड इमोशंस भी लिख सकते थे। फिर मैं आई कि और स्पेसिफिक क्या होगा, और स्पेसिफिक होगा रीजनेबल आर्ग्यूमेंट्स इन द अबॉर्शन कंट्रोवर्सी। तो यू अंडरस्टूड कि मैंने स्पेसिफिक से स्पेसिफिक टाइटल लेना है। इसी तरीके से यही आपको दिमाग चलाना है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में, और इसी पे वो क्वेश्चन पूछते हैं। वो क्या करेंगे, आपको जो पैराग्राफ देंगे 2-3 पैराग्राफ सिमिलर होंगे आपके,
तो इसीलिए आपके अंदर वो एबिलिटी होनी चाहिए कि मुझे एग्जैक्टली जितना मैं स्पेसिफिक जा सकता हूँ उतनी स्पेसिफिक थीम पकड़नी है मुझे, तभी मैं दो पैराग्राफ्स के बीच में अंतर कर पाऊंगा। नेक्स्ट, सो अबॉर्शन कंट्रोवर्सी। अबॉर्शन इज अ टॉपिक लाइकली टू रेज मोर वायलेंट इमोशन। तो हम लोग यहाँ क्या करने जा रहे हैं, हम लोग एक इंट्रोडक्शन पढ़ने जा रहे हैं और हम फिर बताएंगे कि अच्छा है या कैसा है ना। हम देखेंगे, आप भी मुझे बताना, आप भी थोड़ा मेरे साथ पढ़ो, आप मुझे बताना कि आपको क्या कमी लगती है इसमें, क्या अच्छा है ना। तो लेट मी चेंज द पेन, थोड़े अच्छे पेन से। सो अबॉर्शन जो है एक टॉपिक है जो कि बहुत सारे वायलेंट इमोशन जो है वो रेज करता है, ठीक है। इमोशन रेज करता है देन द रीजन आर्ग्यूमेंट, ओके। नेवरदलेस, फिर भी, there are some reasonable voices in the emotional wilderness, and it is their argument on abortion I will present an analysis, okay. A minimum condition for being a reasonable voice is not to expect others to accept on faith statement that are unprovable। तो ये कह रहा है कि रीजनेबल होने का मतलब क्या है, मतलब ये है कि जब तक कोई आपको प्रूफ्स ना दे तब तक आप कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू एक्सेप्ट मत कीजिए। Thus, any argument that would try to enforce by law a proposition that is unprovable is unnecessary and unreasonable। तो इसीलिए अगर कोई भी ऐसा आर्ग्यूमेंट है that would try to enforce by law proposition that is unprovable, वो क्या है, unreasonable। Statements such as God infuses a soul into every union of human gametes at the moment a zygote is formed are unprovable। ठीक है, तो कई बार अबॉर्शन के हम ये आर्गुमेंट देते हैं ना कि भाई क्यों नहीं कराना चाहिए, इसलिए नहीं कराना चाहिए क्योंकि हर जो भी जाइगोट होता है उसमें सोल होती है, अगर आप उसको मार रहे हो तो एक जीव हत्या है ना, इट इज़ लाइक अ मर्डर, बिकॉज जब जाइगोट फॉर्म होता है तो उसके अंदर सोल आ जाती है। इट मे नॉट बी अनरीजनेबल टू बिलीव सच अ क्लेम इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वंस रिलीजियस फेथ। ठीक है, तो अगर रिलीजियस हम लोग बोलते हैं तो रिलीजियस में तो ऐसी चीज़ मान लेते हैं, लेकिन इट इज़ अनरीजनेबल टू रिक्वायर दैट, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी जो आप समझते हो वो दूसरा भी समझे। इन दिस ऐसे I will explain why such demand is unreasonable as I attempt to demonstrate what constitute a reasonable argument on the topic of abortion. Okay? अब आप मुझे एक एक करके बताओगे, पहले तो बताओ मुझे इसमें हुक स्टेटमेंट का है। ओके, यू विल स्पीक हाँ एंड टेल। मैम। तो हाँ, इसमें जो मतलब फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट है, मतलब गॉड या फिर वही ज्यादातर दिखाया गया है, लेकिन जो सोशल एस्पेक्ट है उसमें कोई बातचीत नहीं किया गया है, मतलब एबॉर्शन में जो This is सोशल just an इम्पैक्ट introduction. पड़ता है। This is not the complete essay, first of all. Okay? This is not हाँ complete essay. This is just an introduction. So now you will tell me, हाँ। I'm asking hook कहाँ पर है इसमें, क्या उसने पहली लाइन में कुछ ऐसा लिखा है जिससे कि मुझे, चलो पहली लाइन इसके बारे में आप मुझे थोड़ा सा बताओ। अबॉर्शन इज अ टॉपिक लाइकली टू रेज मोर वायलेंट इमोशन देन द रीजेंट आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, ये लिखा है इसने यहाँ पर। क्या आपको लगता है ये चीज़ सीधा टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर रही है, यस और नो? यस। ठीक है, करेक्ट कर रही है ना, क्योंकि वो यही तो बता रहा है। हाँ देखो, और लिखना भी ऐसे ही, हाँ। हाँ सीधा ये नहीं कि अबॉर्शन ये होता है वो होता है, ये तो बहुत बेसिक चीज़ है कि आप अबॉर्शन की हाँ। डेफिनेशन लिख दे रहे हैं। समझो, टॉपिक ना अबॉर्शन के बारे में है, ना कंट्रोवर्सी के बारे में है, ना रीजनेबल के, ये सब एक साथ है। और जब ये सब एक एक साथ है तब आपने सेकंड। बता दिया कि हाँ, बेसिकली आप जो बात कर रहे हो वो आप डिबेट के बारे में बात कर रहे हो। उस डिबेट में भी क्या है, कौन सी डिबेट है, इमोशन वर्सेस रीजन की। कि जब हम अबॉर्शन कराने जाते हैं, क्या ये रीजन पे बेस्ड होना चाहिए आपके कि भाई अगर नहीं चाहिए बच्चा तो गिरा देते हैं, या ये इमोशन पे होना चाहिए कि नहीं अब जो है मेरा है, सोल जो सोल आ गई है इसमें, ठीक है, मेरा बच्चा है, मैं कैसे गिरा दूं, समझ रहे हो? तो दे दिस देयर इज दिस हाँ। डिबेट अबाउट इमोशन और रीजन, और ये आपने पहली लाइन में बता दिया, तो वेरी गुड, है ना। ये दूसरी लाइन में भी बताना, दिस इज फ्रॉम द फर्स्ट लाइन यू कैन से दैट यू हैव अंडरस्टूड द पॉइंट, करेक्ट। ओके, नाउ इन द सेकेंड लाइन, अगेन इसमें कोई हुक स्टेटमेंट उन्होंने डाला नहीं है, विच आई वुड एनकरेज यू। हमेशा आपको क्या है ना, थोड़ा सा स्टार्टिंग में कुछ ऐसा एनालॉगी वगैरह डालनी चाहिए जिससे कि सामने वाले का इंटरेस्ट हो। अच्छा, क्या आपको लगता है, ये मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, आप मुझे बस ये बताइए, ये लगता है आपको ये है हमारा थीसिस स्टेटमेंट या कुछ और है? इज दैट इज दैट आवर थीसिस स्टेटमेंट, यस और नो?
एक मिनट मैम। as a attempt to demonstrate what। हाँ, ये यही है, लेकिन अच्छा, इसका आपको जो क्लियरली स्क्रीन दिख रही है? मुझे जूम करने की जरूरत तो नहीं है? हाँ, नहीं नहीं ठीक। ठीक है। ठीक है। हाँ, तो ये थीसिस स्टेटमेंट है। इसका मतलब ये है कि ये जो बताना चाह रहा है, जो करना चाह रहा है, वो प्रॉपरली उसने बता दिया। ठीक है, इसको ही थीसिस स्टेटमेंट कहते हैं। अगेन आई से मत करना, कभी भी आई से मत करना, है ना, अनलेस के अलाउड हो। तो ये है। ठीक है। अब आपको नहीं लगता कि इंट्रोडक्शन के लिए इसने कुछ ज्यादा ही बिना मतलब की डिटेल्स दे दी है ना? ठीक है, ये वाले भी मैं मान लेती हूँ, ये भी अच्छा है। नेवरदलेस देयर आर सम रीजनेबल वॉइसेस इन दिस इमोशनल वाइल्डनेस, इट इज देयर आर्गुमेंट, आई विल प्रेजेंट एंड एनालाइज। गुड। बट उसके बाद जो है, ये रीजनेबल वॉइस क्या होती है, क्यों अनप्रूवेबल है, एनफोर्स बाय लॉ, प्रपोजिशन, ठीक है, ये सब चीजें आपको लगता है अननेसेसरी है, या आपको लगता है कि ये हाँ, जरूरी हाँ, वही वही मैं नहीं, आप? मतलब एक ही भी पर ज्यादा, मतलब दो तीन स्टेटमेंट ज्यादा हो गया शायद, लगता है। ओके। तो मतलब बेसिक, हाँ, ठीक है। तो व्हाट इन्फ्यूजेस ए आर। हाँ, हाँ हाँ, इस भी। उसी को मतलब वही पॉइंट लिखता तो ये पूरा कवर हो जाता। तो प्लस मुझे लगता स्टेटमेंट है सच ये गॉड गॉड वाली इन्फ्यूजेस सोल इनटू। डायरेक्ट लिखने की जरूरत नहीं थी। हम आराम से बॉडी में एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्या रीजन है एग्जैक्टली, है ना? क्योंकि हाँ हमें थोड़ा सा शॉर्ट में लिखना होता है हाँ ना। हाँ तो एग्जैक्टली उसने तो देखो इन्वर्टेड कॉमाज में भी लिख दिया। तो इन्वर्टेड कॉमा जनरली नहीं लिखने चाहिए इंट्रोडक्शन में, अनलेस कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड हो, राइट? तो थोड़ा सा इसमें अननेसेसरी है, बट अदरवाइज दिस इज गुड। क्योंकि मैं बताती हूँ क्यों। जो आपका थीसिस स्टेटमेंट है ना, उसने लिखा है अटेम्प्ट टू डेमोन्स्ट्रेट दैट कॉन्स्टिट्यूट अ रीजनेबल आर्गुमेंट। तो उसने प्रॉपर रीजनेबल और अनरीजनेबल की प्रॉपर उसने डिस्कशन की है ना? अगर वो ये नहीं करता तो शायद मैं नहीं समझ पाती कि अबॉर्शन के बारे में रीजनेबल का क्या मतलब है। सब तो रीजनेबल है ही, लेकिन उसने अच्छे से एक्सप्लेन किया। इमोशन वर्सेस इसकी डिबेट है, ठीक है, इमोशन का उसने बताया। तो वन टू, इफ आई लीव द वन टू स्टेटमेंट दैट कुड हैव इंक्लूडेड इन द बॉडी, otherwise the introduction is good. Okay, now even if I don't read the whole essay, I have an idea what the writer is going to talk about. Okay, तो ये जो चीज है ना, प्रस्तावना प्लस, आपने एक चीज देखी होगी, वो बहुत लॉजिकली जा रहा है। मैंने आपको डेमो क्लास में एक वर्ड सिखाया था, वो होता है कोहेरेंट। ठीक है, कोहेरेंट आप जब भी अपनी वो जाओगे ना, लिखने जाओगे आंसर राइटिंग में, हर उस वहां पर ये शब्द जरूर लिखा होगा कि कोहेरेंटली लिखना है आपको। कोहेरेंट का मतलब ये होता है किसी लॉजिकली मूव कर रहा है। मतलब कि पहले उसने प्रॉपर बताया कि डिबेट है, फिर उसने मूव किया, ठीक है, इस पे कि अच्छा क्या कंडीशन है, उसने रीजनेबल अनरीजनेबल की डिबेट बताई, फिर उसने कहीं ना कहीं एग्जाम्पल बताया, और आफ्टर दैट अब हमें समझ आ गया कि अच्छा वो थीसिस बताने के लिए ये सब चीज़ें कर रहा था। इसको बोलते हैं कोहेरेंस। इसका मतलब है कि उसने लाइन वाइज लाइन, स्टेप बाय स्टेप सब किया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी एस एंड इन अ सिंगल पैराग्राफ। तो दिस आई कैन से अ गुड इंट्रोडक्शन, बट थोड़ी सी अनरीजनेबल बातें लिखी हैं, बट इट्स ओके, ओवरऑल इट इज अ गुड इंट्रोडक्शन। तो आपको समझ आया इंट्रोडक्शन क्या होता है? अभी तक कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग इंट्रोडक्शन इफ यू वांट। नहीं मैम, ठीक है। ठीक है। तो अब आपको काम क्या है बेटा, आप जब भी एडिटोरियल पढ़ते होगे ना, हमेशा ना इंट्रोडक्शन पढ़ना। कोई आपको एडिटोरियल मिले, कोई आपको बुक मिले, इफ यू कैन सी अ वेरी गुड आर्टिकल समवेयर, या कुछ किसी की बहुत ही अच्छी नॉवल मिल जाए, ऑलवेज ट्राई टू सी द इंट्रोडक्शन एंड ऑलवेज जज दैट। ओके, हमेशा जज करो, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये अच्छा है, इसमें ये नहीं है, इसमें ये नहीं है। उससे क्या होगा ना, तुम्हारे जो स्किल्स हैं वो बढ़ेंगे। दूसरी बात, कभी भी ना बातों से काम नहीं चलता है राइटिंग में। ओके, नो मैटर हाउ मच आई टेल यू कि तुम हुक लिखो, ये अच्छा है, ये बुरा है, अनलेस यू सिट एंड राइट। ओके, अनलेस यू सिट एंड राइट, नथिंग विल इम्प्रूव। एंड व्हेन आई टेल दिस, अगर मैं आपको बोल रही हूँ बेटा 20 आर्टिकल लिखोगे तभी 21 अच्छा लिखोगे, देन दिस इज अ फैक्ट। मैम कभी आवाज नहीं। या ब्रेक कर रहा है थोड़ा। आवाज ब्रेक कर रहा है? ओके, हाँ। सो व्हाट आई एम सेइंग, वन सेकेंड, नाउ इट इज फाइन। मतलब नाउ इट इज फाइन। अब करेक्ट है? यस यस यस। हाँ।
Okay. Yes. So yes, I was saying कि writing will come with the writing only. So in order to improve your writing skills, you will have to write. Okay, अगर मैं कह रही हूँ कि 20 आर्टिकल्स आपको लिखने ही हैं और तभी आपका 21वां इम्प्रूव होगा, एंड दैट इज अ ट्रूथ, नो मैटर हाउ मच नॉलेज आई इम्पार्ट यू इन द क्लास के ये अच्छा होता है ये बुरा होता है, अनलेस यू सिट एंड राइट एंड यू एक्चुअली डील विद दैट प्रॉब्लम्स कि मुझे इंट्रोडक्शन में पता है हुक लिखना है लेकिन मेरे दिमाग में सेंटेंस ही नहीं आ रहा, या मेरा आ रहा है तो मैं जोड़ नहीं पा रहा हूँ, और लिख भी रहा हूँ तो मुझे लगता है शायद मैं इससे और अच्छा लिख सकता हूँ. तो दिस प्रोसेस you will have to go through, and then only you will be able to write a good introduction, and in the future how it will work, you will write with the flow. ठीक है, हमें कौन से स्टेज पे पहुंचना है कि जब मैं टाइटल देखूं और मैं इंट्रोडक्शन एकदम लिख दूं, दैट फ्लो विल कम ओनली आफ्टर अ लॉट ऑफ राइटिंग. So but this is for the starting, you should at least know, you should not be misguided. So let's move towards the next introduction. Okay. तो ये आप ये वाला पढ़ो, द सोशल एंड पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ रिलीजियस आर्ट इन एंशियंट ग्रीस एंड इजिप्ट. आप पढ़िए इसे, उसके बाद आप मुझे बताइए कि इसमें क्या अच्छा है और क्या अच्छा नहीं. रीड इट कम्प्लीटली. स्पीक नाउ. हाँ, जो फर्स्ट लाइन है तो उसमें ग्रीक एंड जो इजिप्ट का जो आर्ट है वो कैसे कनेक्टेड है, और अ, उस बारे में बातचीत किया गया है. ओके. मतलब जैसे मतलब शैल वी रीड द आर्टिकल टाइटल में. फर्स्ट, शैल वी रीड द टाइटल फर्स्ट. चलो टाइटल से पढ़ते हैं. हाँ, हाँ. टाइटल द समझाए सोशल मुझे. एंड पॉलिटिकल. हाँ मैम. टाइटल समझाइए पहले मुझे अच्छे से. द सोशल एंड पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ रिलीजियस आर्ट इन एंशिएंट ग्रीस एंड इजिप्ट. मतलब जो ग्रीस एंड इजिप्ट का जो पुराना आर्ट है, मतलब पुराना ग्रीस और इजिप्ट का जो आर्ट है वो कैसे सोसाइटी एंड मतलब सोसाइटी एंड पॉलिटिकल एंड रिलीजियस तीनों फॉर्म का, मतलब तीनों फॉर्म को शो करता है. आर्ट के मतलब बाय आर्ट दे हाउ हाउ दे शो सोशल एंड पॉलिटिकल एंड रिलीजियस करेक्ट करेक्ट फंक्शंस. करेक्ट. नेक्स्ट. सो पहले लाइन में जो बोला गया है, तो मतलब ये बोला गया है क्योंकि ग्रीस एंड इजिप्ट एक साथ लिया गया है, तो ग्रीस एंड इजिप्ट का आर्ट कैसे कनेक्टेड है वो बोला गया है. गुड. और उसके बाद जो उन दोनों के अंदर जो मेन डिफरेंस है वो उस लाइन में मतलब डिस्क्राइब किया गया है. इन द ग्रीस आर्ट्स अफर्म्ड ह्यूमन फ्रीडम एंड डिग्निटी, व्हाइल मतलब इजिप्ट आर्ट का जो प्राइमरीली जो फोकस है फेरो ये बताया गया है. करेक्ट. और बताइए. और लास्ट लाइन जो है उसमें क्लियरली बताया गया है कि सोशल एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर और जो दिखाया जाएगा इस ऐसे में, ये मतलब जो थीसिस लाइन होता है ये बोला गया है. समझाइए मुझे थीसिस लाइन. हाँ, ये पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ टू सोसाइटीज, इट इज बिलीफ. दोनों देश का जो मतलब रिलीजियस जो बिलीफ था उसमें जो अलग था, या फिर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो अलग था, एंड दोनों सोसाइटी जो अलग मतलब ग्रीस सोसाइटी और इजिप्शियन सोसाइटी जो अलग था, तो वो कैसे आर्ट के मतलब उसको एक्सप्लेन किया जाएगा ये बताया गया है. ओके. मतलब इन द एसे द राइटर विल एक्सप्लेन द social and political structure of the societies ओके. of Greek and Egypt. तो अब मुझे एक दो लाइन में बता दो कि टोटली ऐसे में क्या बताना चाह रहे हाँ, अ,
जो ग्रीस का जो पहले आर्ट ऐसे में फॉर्म के बारे में बताया जाएगा कि एक्चुअली आर्ट फॉर्म होता क्या था। उसके बाद दे आर मतलब सोसाइटी के ऊपर उसका क्या प्रभाव था, और एक दो आर्ट जो होगा सोसाइटी के ऊपर उसका एग्जाम्पल दिया जाएगा। उसके बाद पॉलिटिकल क्या इशू, इशू के साथ कैसे ये मतलब लिंक्ड अप रहता था, लाइक इजिप्ट इन पिरामिड, मतलब पॉलिटिक्स जो आर्ट्स वगैरह होता था, तो उसको दिखाया जाएगा। एंड समथिंग अबाउट रिलीजियन ऑल्सो। करेक्ट, ओके। तो अब मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से समझाती हूँ ये चीज़। अच्छा, ये किसी ने लिखा होगा, ठीक है, तो जिसने लिखा होगा उसको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी होगी कि वो क्या लिखने वाला है। तो हम स्टार्ट करते हैं टाइटल से, ठीक है। तो बेटा ये भी एक स्किल होता है डिकोड करना, इसलिए मैं आपको कहती हूँ कि जैसे ही आज आपने पढ़ लिया ना, तो जाइए, जब भी आप एडिटोरियल पढ़ोगे ना, ऑलवेज ट्राई टू डी कोड, बिकॉज यूनिवर्सल स्ट्रक्चर सेम रहता है। अभी तक बस हमें पता नहीं था कि राइटर किस तरीके से लिखता है, अब हमें पता है। हमें इंट्रोडक्शन के भी सारे एलिमेंट्स पता है, हमें बॉडी और कंक्लूजन के भी हम पता कर लेंगे, और आप देखोगे कि सब आर्टिकल उसी तरीके से लिखे होते हैं। दैट इज अ यूनिवर्सल स्ट्रक्चर। सो लेट्स डी कोड, ठीक है। मैं इसको क्या बोलती हूँ, ये जो मेरी टेक्निक है, आई टेल इट कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग क्या होती है, जो मैंने आपको ऊपर बताई कि टाइटल होता है, फिर इंट्रोडक्शन होता है, दैट इज अ कोडिंग। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम कर रहे हैं डिकोडिंग। डिकोडिंग मतलब जो लिखा हुआ है, क्या मैं पहचान पा रही हूँ क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है। ये लिखते हैं, तो देखो, पहले हमारा टाइटल, सोशल एंड पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ रिलीजियस आर्ट इन एंशिएंट ग्रीस एंड इजिप्ट। तो बेसिकली ये आपको टाइटल के भी, ये क्या है, कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट मैंने आपको अच्छे से समझाया, इसको बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट। सो इन एंशिएंट एंड ग्रीस में जो रिलीजियस आर्ट थी हमारी, जो रिलीजियस आर्ट थी, ठीक है, नॉट एनी आर्ट, अगेन वेरी स्पेसिफिक टाइटल, नो आर्ट कैन बी ऑफ मेनी टाइप्स। रिलीजियस आर्ट जो है वो कैसे पॉलिटिकल और सोशल फंक्शन शो करती है, ओके। तो रिलीजियस आर्ट जो है वो उसका सोशल और पॉलिटिकल फंक्शन क्या था एंशिएंट ग्रीस और इजिप्ट। ये है हमारा। पहली लाइन में देखो, पहली लाइन में आंसर आना चाहिए। आंसर उसने किस वर्ड से दिया, इस वर्ड से, क्लोजली। रिलीजन एंड आर्ट वर क्लोजली कनेक्टेड इन बोथ द एंशिएंट एंड ग्रीस एंड इजिप्ट, ठीक है। तो क्या था, दोनों आपस में बहुत क्लोजली कनेक्टेड थे। मान लो कि नहीं थे, ठीक है, इंडिया के बारे में लिखते हो, रिलीजन एंड आर्ट आर नॉट कनेक्टेड विद ईच अदर, ये ऐसा भी हो सकता है। तो पहली लाइन में आंसर देना होता है आपको कि जो भी टाइटल है उसका आंसर क्या है ये। नेक्स्ट, बट इन द ग्रीस, तो पहले मैंने बताया कि क्लोजली है। अब मैंने ग्रीस और इजिप्ट में डिफरेंस कंपैरिजन बता दिया। ग्रीस में तो आर्ट जो है वो ह्यूमन फ्रीडम और डिग्निटी को दिखाती है, इजिप्ट में क्या है, इजिप्ट में बताती है फराओ की पावर के बारे में। ग्रीक आर्ट में क्या होता है, ह्यूमन नॉन डोगमेटिक व्यू ऑफ द गॉड बताया गया। इजिप्शियन आर्ट में जो है वो रिजिडिटी स्टिफनेस। तो ये मैंने यहाँ से क्या कर दिया, मैंने इसे कंपेयर कर दिया। कंपैरिजन नंबर 1 मैंने आपको बताया, इंट्रोडक्शन में आप कर सकते हो। क्यों कर सकते हो, इससे हमें और ज़्यादा, तो क्या बता रहा है समझ लो, डिकोड कर रहे हैं। इसमें हमें ये बता रहा है कि क्लोजली तो रिलेटेड थे, लेकिन डिफरेंस भी बहुत था उसमें। ऐसा नहीं है कि ग्रीस और इजिप्ट में सब एक जैसा था, नहीं, रिलेटेड थे आपस में, रिलीजन और आर्ट रिलेटेड थे, बट देर वॉज अ डिफरेंस बिटवीन द ग्रीक एंड इजिप्शियन आर्ट। नाउ हिस्ट्री जो है वो ग्रीक आर्ट की वो क्या शो करती है, डायनेमिक और चेंजिंग सोसाइटी। द हिस्ट्री ऑफ इजिप्शियन आर्ट शो स्टैटिक। देख रहे हो कितना बड़ा डिफरेंस है। तो ये या इस इन दो लाइनों को मुझे पढ़ के समझ आ गया कि दो, एक चीज किसी में सेम हो सकती है, बेसिक सेम हो सकती है, लेकिन तब भी उसमें कितना डिफरेंस हो सकता है। लेकिन इजिप्शियन आर्ट में अनचेंजिंग सोसाइटी, ओके। To understand these differences in art and their relationship difference in the social and political structure of the two societies, it is essential to understand the differences between religious belief that give rise to them. तो समझ रहे हो आप कैसे इसने बताया, देखो, जब मैं रिलीजियस बिलीफ समझूं, पहले मैं रिलीजन समझूंगी, ठीक है, उसके बाद मैं रिलीजियस, या फिर मैं ऐसे लिख देती हूँ, ठीक है। यही यही मेन पॉइंट था जो हमें समझना था। क्या पॉइंट है कि पहले पहले दोनों का रिलीजियन, मतलब रिलीजियन समझना है और रिलीजियस बिलीफ समझना है। उसके बाद फिर आर्ट फॉर्म कैसे उसके अंदर ट्रांसफॉर्म, मतलब बहुत बढ़िया, ट्रांसफॉर्म होता है वो समझना बहुत बढ़िया, ठीक है, यही बस आपको समझना था, ठीक है। तो इससे मैं लिख देती हूँ, पहले रिलीजन समझना है, रिलीजियस, रिलीजन समझेंगे,
तो रिलीजियस बिलीफ समझ में आएगा, रिलीजियस बिलीफ समझ सॉरी बिलीफ्स रिलीजियस बिलीफ समझ में आएंगे हमें, रिलीजियस बिलीफ हमें समझ में आ गए तो हमें वहाँ की आर्ट समझ आएगी, ठीक है, हमें वहाँ की आर्ट जो भी हमारी रिलीजियस आर्ट जिसे हम बोलते हैं वो समझ आएगी, और फिर हमें समझ आएगा कि वो आर्ट जो है वहाँ के सोशल और पॉलिटिकल फंक्शंस को कैसे बता रही थी, ये कनेक्शन है, ठीक है। तो पहले रिलीजन होगा, फिर रिलीजियस बिलीफ पता लगेंगे, और इन्हीं चीज़ों से हमारी आर्ट बन रही थी, और आर्ट जो है हमारी किससे और भी किससे इन्फ्लुएंस थी, हमारे सोशल और पॉलिटिकल फंक्शन से। तो अब ये आपस में सब कनेक्टेड हो गया। यही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब आप ऐसे लिखते हो ना, एसेज आर नॉट सिंपली कि मैं पहले एक लाइन सोच लूँ, दो लाइन सोच लूँ, नो, it tells about this is an art, you know, you have to connect everything to the other thing, you have to present your ideas in a coherent way, in a connection, है ना। तो जैसे तो इसीलिए यू नो तो यू हैव अंडरस्टूड दैट, इस तरीके से यहाँ पर ये चीज़ समझाई गई। अब आपका क्या रहेगा होमवर्क, वो मैं आपको बता देती हूँ। ओके, इतना आपको समझ में आ गया। दिस इज योर सो आपको ना इस पे ऐसे लिखना है, ऐसे कह रही हूँ, एक इंट्रोडक्शन लिखना है आपको, डेथ पेनल्टी राइट और रॉन्ग, राइट योर होमवर्क, द डेथ पेनल्टी राइट और रॉन्ग, द डेथ पेनल्टी राइट और रॉन्ग। इस पे आपको क्या करना है कि इंट्रोडक्शन लिख के लाना है। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है आपको। जब आप लिखोगे ना, आपके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज आएंगे, आप एक बार इंट्रोडक्शन लिखो। नाउ इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द इंट्रोडक्शन, कट दैट, write the second introduction. Now if you are not satisfied with that also, cut that, write the third. So the thing is, I want the best जो भी आपको लगता है वो इंट्रोडक्शन मुझे आपसे चाहिए। और ऐसे ही होता है, एसेज कभी भी एक बार में नहीं लिखे जाते। देर आर मैनी पीपल हु राइट मैनी ड्राफ्ट्स ऑफ द इंट्रोडक्शन, ऑफ द बॉडी, ऑफ द कंक्लूजन, राइट। सो ये हमेशा ध्यान रखो कि जब भी आप किसी को प्रोड्यूस कर रहे हो तो आपको बेस्ट देखना है। इसके यहाँ पर आपको एक और स्किल सीखने को मिलेगा जिसको हम बोलते हैं प्रूफ रीड। ओके, प्रूफ रीडिंग इज कि तुमने कुछ लिखा लेकिन तुम्हें लगता है, पहले तो तुम्हें लगता था कि मैंने बहुत अच्छा लिखा, लेकिन तुम्हें बाद में फीडबैक मिला कि इतना अच्छा नहीं था, ठीक है। ये कैसे आता है, प्रूफ रीडिंग से। तो फीडबैक से पहले ही प्रूफ रीड कर लो एक दो बार, फिर देखो क्या मैं इससे अच्छा लिख सकता हूँ, क्या मैं इससे अच्छा लिख सकता हूँ, और फिर जब आप बार बार ये लिखोगे आपका एक लेवल सेट हो जाएगा, फिर आप हमेशा एक स्टैंडर्ड लेवल का ही लिखोगे। दिस इज द होल प्रोसेस। बट ये आएगा कैसे, आएगा तभी जब खुद की पेन होगी और खुद की नोटबुक होगी। ओके, सो दिस इज यू विल हैव टू डू द डेथ पेनल्टी। इसका आंसर जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। ओके, तो अभी हमें ये कंप्लीट करना है। एज वी आई हैव टोल्ड यू, एवरी फ्राइडे हम लोग थोड़ा राइटिंग की क्लास करते हैं, तो ये ऐसा नहीं है कि मंडे को होगी, ये एवरी फ्राइडे को होती रहेगी, करेक्ट। प्लस दूसरी बात ये है कि मैं आपको एनकरेज करती हूँ, अगर आप अपना कोई भी टॉपिक लो, आप आंसर लिखो, आप यूपीएससी का कोई क्वेश्चन आंसर कर रहे हो तो भी आप जो है उसका आंसर मुझे सेंड कर सकते हो, ठीक है। आई विल चेक दैट। आप ठीक है, एनी क्वेश्चन यू वांट टू आस्क?